نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہمارے رمضان کورس کا پہلا سبق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو خیر و عافیت کے ساتھ ہم اپنا کورس مکمل کریں گے۔ رمضان کورس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف میں اعمال کیے جاتے ہیں اور جو افعال سر انجام دیے جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہمیں ان عبادات اور ان اعمال کو کرنا آسان ہو جائے۔ رمضان کورس میں بنیادی طور پر جو باتیں کی گئی ہیں، نمبر 1 مسائل کو سامنے رکھا گیا ہے۔ مسائل کے ساتھ ساتھ پھر دعاؤں کا بھی اہتمام، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر کچھ صورتیں ہیں کہ انسان ان صورتوں کو بھی یاد رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی معلومات افزا یہ کورس ہوگا جس کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، یعنی جب رجب کا مہینہ شروع ہوا تو رجب سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ یہ استقبال رمضان کی دلیل ہے۔ استقبال کہتے ہیں کہ کوئی ذات اور شخصیت ابھی آئی نہ ہو، ابھی ان کی آمد ہوئی ہی نہ ہو، لیکن آپ یہ بات کریں کہ جب وہ آئے گی تو اس میں یہ صفات ہوں۔ اسے کہتے ہیں کسی چیز کا استقبال کرنا اور کسی کی آمد سے پہلے اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان کی آمد کا۔ چنانچہ آپ کی دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان شریف نصیب فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور آپ نے ان کے سامنے رمضان المقدس کی اہمیت کا ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کی آمد سے پہلے اس کا تذکرہ کرنا، اس کے اچھے پہلو کو سامنے لانا، اور اس میں جو کام بچنے والے ہیں ان بچنے والے کاموں کے متعلق بھی کسی کو آگاہ کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو رمضان المقدس کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتاتے تھے۔ تو ہم بطور مسلمان اس رمضان کے مہینے کا استقبال کر رہے ہیں۔ کسی ملک میں روزہ ہو چکا ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں روزہ کل ہوگا، تو روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ استقبال کا معنی ہے کہ ہم اپنا ذوق اور شوق پیدا کریں، روزمرہ کی دعاؤں کا ہم لوگ اہتمام کریں، خود بھی روزہ رکھیں، گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں، خود بھی رمضان کا شوق ذہن میں بٹھائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رمضان کا شوق دل میں ان کے پیدا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان المقدس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور عبادات ذوق اور شوق کے ساتھ سر انجام دینی چاہیے۔ اب مسئلہ دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق، چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو فضائل زکوٰۃ پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ،
व इकाम सलाह व ईता ज़का वल हज व सौम रमदान। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के मुत्तसिल बाद तज़करा किया है ज़कात का। तो नमाज की भी अहमियत है और ज़कात की भी अहमियत है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला राजी होते हैं और ज़कात अदा करने से भी अल्लाह ताला राजी होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला का हुक्म है अकीमुस्सला वातु ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना ये दोनों इकट्ठे इकट्ठे जिक्र किए गए हैं। और जब नमाज इंसानी जिस्म की पाकीज़गी का जरिया बनती है तो ज़कात इंसानी माल की पाकीज़गी का बनती है, पाकीज़गी का बायस बनती है। इसलिए ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों के लिए सख्त वईद के अल्फाज वईद कहते हैं, डर सुनाया है, जहन्नम के अंदर मुब्तला होने का खौफ दिया है। तो जो शख्स मालो दौलत के बावजूद ज़कात अदा नहीं करता तो उन जैसे अफराद के बारे में कुरान करीम में इरशाद है वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। यहाँ ये बात समझें कि इस से मुराद कि जो माल जमा करते और खर्च नहीं करते, इससे मुराद ज़कात का माल है कि इंसान माल जमा करता है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता। तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, जिस दिन इस सोना चांदी को आग जहन्नम की आग से गर्म किया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम, और उनकी पेशानी को दागा जाएगा। जुनूबहुम, और उनके पहलुओं को। वजुहूरहुम, और उनकी पीठों को। और क्या कहा जाएगा, हाजा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये वो चीज है कि जिसका तुमने अपने लिए जमा किया था। तो दूसरी चीज हमने पेश की है कि ज़कात की अहमियत को इंसान समझे और अपनी ज़कात का हिसाब करके ज़कात अदा कर दिया करे। और अगर कोई शख्स इस्तिताअत और ताकत के बावजूद ज़कात नहीं निकालता तो उसके लिए वईद और डर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया और अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया। तो सूरत तौबा आयत नंबर 34 और 35 में भी यही जिक्र है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, मा खालतती सदक़तु औ क़ाल अज़्ज़कातु मालन इल्ला अफ़सदतहु। तर्जमा इसका यह है, जब माल में ज़कात की रकम शामिल हो जाए, यानी ज़कात की अदायगी नहीं पाई गई या पूरी ज़कात नहीं निकाली गई बल्कि कुछ ज़कात निकाली गई और कुछ रह गई, तो वो माल इंसान के लिए तबाही और हलाकत का है। जाहिर सी बात है कि जब इंसान माल को अल्लाह तबारक व ताला जब इंसान माल को अल्लाह तबारक व ताला के कहने के मुताबिक खर्च करे और उसी के मुताबिक ज़कात अदा करे तो ज़ाहिर बात ही कामयाबी है। और अगर उसकी मुखालफत करे तो ये फिर नाकामी है। इसलिए इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि वो एक एक रुपए का हिसाब करे ताकि ज़कात उसकी ठीक अदा हो जाए। तो दूसरी हमने चीज अर्ज की है कि ज़कात की जो अहमियत है वो इंसान के सामने आए कि कितनी बड़ी अहमियत है कि इस्लाम का दूसरा रुकन है निसाब। देखिए, ज़कात किस पर फर्ज होती है और किस पर नहीं, उसके लिए ये बात समझ लें कि अगर एक आदमी के पास 52.5 तोले सोना है या उसके पास 7.5 तोले सोना है, 52.5 तोला की कीमत 612.36 और 7.5 तोले चांदी 7.5 तोला सोना की जो कीमत है वो, मैं दोबारा इसको अर्ज करना चाहूंगा
52.5 तोला हम कह रहे हैं कि इसका निसाब है। क्या माना? अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी पड़ी है तो वो साहिब निसाब है। इसी तरह अगर किसी के पास सोना पड़ा है और वो 7.5 तोले सोना है, ये जो लिखा है 7.5 तोले की ग्राम में वैल्यू है 87.5, और 52.5 तोला की ग्राम में वैल्यू है चांदी 612.36 ग्राम। तो बहरहाल इंसान ये देखे कि अगर उसके पास अम्वाल ये मौजूद हैं तो वो साहिब निसाब है, या इनकी कीमत मौजूद है तब भी साहिब निसाब है। तो साहिब निसाब की तारीफ वाज़ेह हो गई है कि अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोला चांदी है यानी 612.36 ग्राम, या 7.5 तोले सोना है यानी 87.5 ग्राम, या उनमें से किसी एक की कीमत के बराबर सामान पैसे मौजूद हैं, तो ये शख्स साहिब निसाब है। यानी आप यूं कर सकते हैं कि साहिब निसाब कौन है और कौन नहीं, इसके लिए इंसान 4 चीजें देखे: सोना, चांदी, नकदी यानी करेंसी, और माल तिजारत। इन 4 चीजों का मजमुआ देख ले। अगर इन 4 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे बढ़ जाता है तो ये शख्स साहिब निसाब है। और अगर इन 4 चीजों को या इनसे कम चीजें हैं उनको जमा किया और 52.5 तोला चांदी की मिकदार से कम रहा तो इस शख्स पर ज़कात नहीं है। यहां ये बात वाज़ेह समझें कि आज के दौर में 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो 1,34,000 रुपए पाकिस्तानी है। हर बंदा अपने अपने इलाके और मुल्क के एतबार से इसका अंदाजा लगा सकता है। तो खैर, आपने देखा मसलन यकुम मुहर्रम को आपने देखा कि आपके पास सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, इनमें से सारे के सारे हैं, इनमें से बाज हैं, और उनकी जो कीमत है सब की मिलाई तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर आती है। तो अब हम कह देंगे कि ये शख्स साहिब निसाब है। आज की तारीख यानी यकुम मुहर्रम को नोट कर ले। मैं वैसे एहतियातन अर्ज करूं, मुहर्रम रमजान भी हो सकते, जिस दिन आपकी मिल्कियत में ये रकम मौजूद हो और 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो उस तारीख को लिख लीजिए। आइंदा साल फिर एक मर्तबा हिसाब कीजिए उसी तारीख यानी यकुम मुहर्रम के आने पर। अगर आपका अम्वाल निसाब के बराबर है या उससे ज्यादा है तो अब आप पर ज़कात लाजिम है, और अगर उससे कम है तो ज़कात लाजिम नहीं। और ज़कात का हिसाब आप कैसे करेंगे? बेहद आसान है कि ज़कात माल का 2.5% होती है। 2.5% यानी आपने उसको 40 पर तकसीम कर देना है, या आपने 2.5% के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके माल की ज़कात निकल आएगी। अच्छा, एक बात यहां ये समझ लीजिए, एक बंदा है उसने ज़कात अदा करनी थी रमजान में, लेकिन उस शख्स ने ज़कात का मुस्तहिक कोई शख्स पहले देख लिया, उसको ज़कात दे दी तो दी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अलबत्ता जब आप मुकर्रर करदा तारीख पर ज़कात का हिसाब निकालेंगे तो जो रकम आप दे चुके हैं वो माइनस कर लेंगे। ज़कात जो है वो नाबालिग पर फर्ज नहीं है, बालिग पर फर्ज है। यानी ज़कात वाजिब कब होगी उसकी चंद आगे शराइत आ रही हैं। बुनियादी तौर पर बालिग और आकिल पर ज़कात फर्ज होती है जब उसमें दीगर शराइत पाई जाए। और अगर एक ऐसा बच्चा है या बच्ची है जो कि बिल्कुल नाबालिग है तो उसके माल पर ज़कात नहीं है। बुलूग की उम्र, अगर लड़की को हैज आ जाए तो बालिग हो चुकी है, और हैज आने की उम्र कम से कम 9 साल होती है। और लड़का अगर इसको इहतलाम हो जाए तो इहतलाम होने की सूरत में ये बालिग समझा जाएगा, और आम तौर पर लड़के को इहतलाम 12 साल की उम्र में होता है। अच्छा, अगर किसी को लड़की को हैज नहीं आया, लड़के को इहतलाम नहीं हुआ और इनकी उम्र 15 साल हो गई, और ये 15 साल
चांद के एतबार से हैं, चांद के एतबार से। तो अगर महमूद साहब सवाल पूछ रहे हैं कि सोने की ज़कात कैसे अदा करें, जिस कीमत में लिया है या जो मौजूदा रेट है, मौजूदा रेट के मुताबिक आप ज़कात अदा करेंगे। खैर, एक आदमी, एक लड़का है या एक लड़की है और अभी नाबालिग हैं, तो उनके माल पर ज़कात नहीं है, और अगर वो बालिग हैं तो उस पर ज़कात होगी। ज़कात के वाजिब होने की चंद शराइत हैं। नंबर एक, इस्लाम, मुसलमान होना। नंबर दो, बालिग होना। नंबर तीन, आकिल होना। नंबर चार, निसाब के बराबर होना। एक आदमी है, उसका माल अलग है तो हिसाब अलग करे। बीवी है, उसके प्रॉपर्टी अलग है, बच्चों की अलग है, तो इंसान जक़ात का हिसाब निकाले तो ऐसा नहीं कि सबकी इकट्ठी, नहीं, बस अपने अपने हिस्से का हिसाब करता चला जाए। तिरमिजी में हदीस मौजूद है, ये इंसान जब चांद देखे तो ये दुआ पढ़े। रमजान शरीफ का चूंकि चांद है, आपने देखा है, तो इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ है, आपने चांद को देखना है और चांद को ये दुआ देखकर जो है वो पढ़कर आपने चांद को देखना है। तर्जमा है, ए अल्लाह, इस चांद को हम पर बरकत, ईमान, खैरियत और सलामती वाला कर दीजिए। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसमें एक तो इशारा देना मकसद है कि इतनी बड़ी मखलूक है लेकिन वो अल्लाह की बनाई हुई है, इसलिए अगर कोई शख्स चांद को की परस्तिश करता है तो नहीं, परस्तिश इसकी जायज नहीं है। क्यों? रब्बी व रब्बुक अल्लाह, हमारा और आपका रब अल्लाह है, हमारा और आपका रब अल्लाह है। अल्लाहुम्मा अहिल्लु अलैना बिल यम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ हर महीने के चांद को देखकर पढ़ना साबित है। जो चीजें हमने आज पढ़नी है, नंबर एक, सूरतुल फातिहा का तर्जमा। मैं पढ़ता जाऊंगा, आपने साथ पढ़ना है और फिर तर्जमा हमने करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो परवरदिगार, जो मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो क़यामत के दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो आज के हमारे सबक में नंबर एक, इस्तकबाल रमजान। नंबर दो, ज़कात के फजाइल। ज़कात के साथ साथ फिर ज़कात किस पर लागू होती है उसकी शराइत वो भी बयान की गई है। इसी तरह ये बयान करने के बाद हमने ज़कात के मुतलका चीज़ों को बयान किया है, ज़कात के मुतलका चीज़ों को बयान किया है। मिसाल के तौर पर ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात किस पर वाजिब है, और साथ साथ ये है कि जब ज़कात वाजिब होगी तो जिस बंदे पर वाजिब है उसमें शराइत क्या है। और इसी तरह हमने ये देखा कि इंसान जब किसी भी महीने के पहली तारीख का चांद देखे तो ये दुआ पढ़े। इसमें एक तो शिरक और कुफर से भी बरात है किस्म की, इसलिए कि रब्बी व रब्बुक अल्लाह, चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। और ये दुआ हर महीना को आप पढ़ा करें। और हमने तर्जमा जो है वो करना है सूरतुल फातिहा का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम, ए जात वो कौन सी है जो क्यामत के दिन की मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ भी करवाया और अपने ही से मांगने के लिए मजमून भी बयान फरमाया, और साथ साथ ये है कि मदद और नुसरत भी खुदा से मांगने का
ذکر کیا ہے۔ تو یہ پہلا سبق تھا جو ہمارا الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔